Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session of high voltage technology. Hope you all are fine and having good health. Another session of our lecture. We are start today with the recitation of the words of Holy Quran. In last we were discussed about the secondary ionization technique, in which the secondary ionization process by which the secondary electrons are produced are the one which sustain a discharge after it is established due to ionization by collision and photoionization. So the particular ionization which is produced after the collision in the form of photoionization, this ionization technique is called secondary ionization. Okay, another one of impact of electron emission due to the positive ion impact. Now we discussed the positive ions are formed due to ionization by collision or by photoionization and being positively charged that travel towards the cathode. A positive ion approach a metallic cathode can cause emission of electron. Metallic cathode metal, which we also discussed in the previous session, that a metal of piece on which a suitable frequency which is strike with the suitable frequency of light from the cathode are being given its kinetic energy on impacts. So that particular matter of cathode have its kinetic energy. If the total energy of the positive ion, namely the sum of its kinetic energy and the ionization energy, is greater than twice the work function of the metal, then the one electron will be ejected and the second electron will neutralize the ion. So up till now we discussed the discussion in our previous session. Furthermore, the electron emission due to photons, the emission of electron due to the photon, the packets of energy, or we can say the light, to cause an electrons टू escape from metal. वो वजह जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से escape हो पाते हैं, निकल पाते हैं. It should be given energy, enough energy to overcome the surface potential barrier. अच्छा, ये एक बैरियर होता है किसी भी मेटल का कि जब तक उस पर एक खास सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं पड़ती तब तक उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. तब तक नहीं निकलेंगे का मतलब उसका बैरियर है ये. तो उसका बैरियर पोटेंशियल सरफेस का क्रॉस करने के लिए एक खास सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आप उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये काम हो पाएगा. द एनर्जी कैन ऑल्सो बी सप्लाइड, और इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी. एक खास सुटेबल फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रावायलेट लाइट आपको उसके ऊपर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करनी होती है. इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से एमिट होने लग जाते हैं, निकलना शुरू होते हैं, ट्रेवल करते हैं. तो अगर इट्स क्रिटिकल कंडीशन, और उस खास क्रिटिकल कंडीशन में जब वो ट्रेवल करते हैं तो फिर वो अपना पाथ पूरा करते हैं और वर्क फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी है फोटो सेंसर की एस्पेक्ट के तौर पे. जैसे हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं या सॉरी विजिट कर रहे होते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह का, तो उनके दरवाजों पे पहुंचकर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गेट जो है, दरवाजा जो है वो खुद ब खुद खुल जाता है. वो खुद नहीं खुलता,
फोटो सेंसर आपके लिए काम कर रहा होता है। ओके, द थर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रॉन इमिशन ड्यू टू मेटास्टेबल और न्यूट्रल एटम्स के एस्पेक्ट में ये काम भी हो पाता है। ये थर्ड कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय इम्पैक्ट ऑफ एक्साइटेड एटम्स, यानी मेटास्टेबल एक्साइटेड एटम को आप उसके इम्पैक्ट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर पाते हैं मेटल सरफेस से, प्रोवाइडेड दैट देयर टोटल एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम दी वर्क फंक्शन। और ये जो एनर्जी होती है इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए एक्साइटेड एटम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट ऑफ एटम्स की कि ये काम वो कर सके। इम्पैक्ट क्या होता है? कम इनटू फोर्सेबल कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, और उसके नतीजे में ये काम हो पाता है। इसकी तफसील में जाए बगैर हम चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट प्रोसेस, द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच द electrons may become attached to atoms or molecules to form negative ions are called attachment collision। और इसमें होता क्या है कि जो एटम होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन के साथ और कैथोड के साथ वो रिएक्ट करता है, नेगेटिव एटम आयंस जो हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं, और आपके जो अटैचमेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस एनर्जी ऑफ कैथोड के साथ प्रोड्यूस होते हैं। द एनर्जी लिबरेटेड यानी जो प्रोड्यूस होती है उसके साथ अटैच होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज द काइनेटिक एनर्जी के प्लस द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ई ए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ई ए कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होती है। अब इसमें फीचर्स अगर हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट क्या है? डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एज इट्स रिमूव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? एटम के स्ट्रक्चर में जो शेल होता है उसके आखिरी शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बाइस बनते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अनलाइक ionization which increase the free electrons, this gives gases very high dielectric strengths. The gas in which electron attachment occurs are electronegative gases, और इसके नतीजे में जो वो आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं गैसेस स्टेट्स के अंदर अटैचमेंट के साथ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस की सूरत में होते हैं, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। Electronegative gases are gases which capture free electrons and form negative ions, so arresting of formation of electrical discharge। arresting का मतलब अपने अंदर कैप्चर करता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को। एग्जाम्पल इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव्स गैसेस आर SF6, जिससे हम कहते हैं सोडियम सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और CH3L, और ऑक्सीजन इन डायटोमिक फॉर्म, ड्राई एयर, ये सारी टेट्राक्लोरो मीथेन की फॉर्म, ये सारी की सारी जो एस्पेक्ट्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस होती हैं। ये क्या करती हैं? डिस्चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो SF6 के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इनमें जो गैस SF6 भरी हुई होती है चैम्बर्स के अंदर, उसका बेसिक रीजन यही होता है कि अगर हैवी वोल्टेज का डिस्चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो तो उस हैवी वोल्टेज के डिस्चार्ज को वैनिश किया जा सकता है इन गैसेस की वजह से, इन गैसेस की मदद से। तो ये जो डिस्चार्ज होती हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और डिस्चार्ज को अगर होने ही नहीं देती, कंटिन्यू होने ही नहीं देती आगे, जिसके नतीजे में आपके जो हाई वोल्टेज स्ट्राइक होती है, शॉर्ट सर्किट अकरेंस होती है, या फिर कॉन्टैक्ट मेकिंग के नतीजे में अगर डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो, शॉर्ट सर्किट का हो या कॉन्टैक्ट मेकिंग का नॉर्मल रेटेड का हो, इन दोनों तीनों सूरतों में आर्किंग प्रोड्यूस नहीं होने देता, डिस्चार्ज प्रोड्यूस होने नहीं देता, क्योंकि ये अपने अंदर अरेस्टिंग कैपेबिलिटी रखता है जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके वैनिश कर देता है। तो ये जो बेसिक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ये इसमें अकर हो पाती है।
आगे हम बात करेंगे ब्रेक डाउन गैसेस, वो गैसेस जिनके अंदर ब्रेक डाउन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होती हैं। ये हम शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी हम तफसील में बात करेंगे। ब्रेक डाउन इन गैसेस, गैसेस के अंदर ब्रेक डाउन होना। अब इमेजिन करें, ये जो मीडियम है जिनके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट मेक कर पाते हैं, ये मीडियम हाई वोल्टेज टेस्टिंग के ही होते हैं। जैसे हमारे जो मीडियम ऑफ ऑयल है, मीडियम ऑफ एयर है, मीडियम ऑफ लिक्विड है, लिक्विड ऑफ ऑयल, मीडियम ऑफ गैसेस हैं, मीडियम ऑफ वैक्यूम है, इन सब के अंदर कांटेक्ट मेक क्लोज और ट्रिप हो रहे होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये डिस्चार्ज को अकर नहीं होने देते और डिस्चार्ज को अपने अंदर अरेस्ट करके वैनिश कर देते हैं। तो इनमें सबसे जो हायर कैपेबिलिटी का ब्रेक डाउन एस्पेक्ट है वो गैसेस के अंदर होता है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्यूरेशन या ड्यूरिंग ब्रेक डाउन इज नोन एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन का मैक्सिमम लेवल जो होता है वो वोल्टेज ब्रेक डाउन का गैस में अकरेंस होती है। व्हेन द वोल्टेज इज लो, स्मॉल करंट flows between electrodes and insulation criteria do not change। तो जब आपके वोल्टेज लो होते हैं तो उसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और लो वोल्टेज के अंदर, स्मॉल करंट के अंदर हैवी डिस्चार्ज अगर नहीं होता। व्हेन द वोल्टेज इज हाई, अ लार्ज करंट फ्लोज। वोल्टेज जब हाई होते हैं तो लार्ज करंट आपका फ्लो होगा, उससे कॉज द स्पार्क्स बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रोड्स में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैस कंसिस्ट ऑफ नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैस में प्रोड्यूस हो रहा होता है ये नॉन सस्टेनिंग होता है, यानी ये एक जैसा नहीं रहता। ये अपनी जो नेचर होती है, डायरेक्शन ऑफ आर्किंग हो रही होती है, इसमें ब्रांचेस हो रही होती हैं, मेन और सब सेकेंडरी ब्रांचेस बन रही होती हैं आर्किंग की। ये नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज की नेचर रखती है। Another category of electric discharge in gas is self-sustaining discharge। वो अपने आप को self sustain भी कर सकती है, ये नेचर भी another category of gas discharge में मौजूद होती है। Breakdown in air is the change of non-sustaining discharge to self-sustaining discharge. Two theories of gas breakdown, that would be Townsend theory एंड स्ट्रीमर थ्योरी। इन दो कैटेगरी में हम नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज से लेके सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज तक दो थ्योरीज डिस्कस कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की दो कैटेगरीज हैं हमारी। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जो दो कैटेगरीज हैं ये हमारे ब्रेक डाउन इन गैस में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन इन गैस के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि डिस्चार्ज को अपने अंदर अरेस्ट करवा पाती है ड्यू टू दी गैस प्रेजेंस ऑफ मीडियम। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम टाउनसेंड थ्योरी और स्टीमर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी चार्ज ऑफ नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज से लेके सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज तक दो थ्योरी मेनली इसमें लाई करती है। फर्दर मोर, सबसे पहले जो हमारी टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी है, टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी। अब इसके अंदर एक एस्पेक्ट है ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉन एवलॉन्च मैकेनिज्म। एवलॉन्च किसे कहते हैं? एवलॉन्च उस स्टेट का नाम है जिसमें हम कम वक्त के अंदर, कम टाइम के अंदर हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज अकरेंस होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जैसे हमारा जब क्या कहते हैं इसको, एक एस्पेक्ट और भी होता है इसमें, हैवी स्पाइक्स जब अकर होती हैं। शॉर्ट सर्किट एक तो एक अलग चीज है, लेकिन हैवी स्पाइक्स अकरेंस जैसे ग्रिड तब्दील होने के नतीजे में, सॉरी, ग्रिड के अंदर यूनिट तब्दील होने के नतीजे में, नए यूनिट्स लगने के नतीजे में, सिंक्रोनाइजेशन अकरेंस डिसअकरेंस होने के नतीजे में, सिस्टम से एक यूनिट निकलने के नतीजे में, तो जो आपकी स्पाइक्स अकर हो रही होती हैं उसके अंदर आपके हैवी स्पाइक्स के नतीजे में
मिली सेकेंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ वोल्टेज की अकरेंस होती है, उस लेवल को भी एवलांच मैकेनिज्म कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एवलांच मैकेनिज्म यही चीज है कि कम वक्त में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर होते हैं और उसके साथ ही साथ आपके हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त आपको मिल रहे होते हैं इन मिलियंस ऑफ वोल्ट की सूरत में। तो इस लेवल को इलेक्ट्रॉन एवलांच मैकेनिज्म कहा जाता है। बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी एवलांचेस टू प्रोड्यूस ब्रेकडाउन। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट है और ये बैक एंड फोर्थ भी कर रही होती है। अब इसमें जो ये होल दिखाए जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल फुलफिलमेंट जो है वो आपके पॉजिटिव आयंस हैं। तो आर दी नेगेटिव आयंस एंड दीज आर दी पॉजिटिव आयंस। तो ये हम जानते हैं कि ये जो होल हैं ये अट्रैक्ट करेंगे एनोड की तरफ क्योंकि ये नेगेटिव इन नेचर है। ये जब अकरेंस यहाँ पे हो रही होती है तो ये मूव करते हैं एनोड की तरफ और जो डार्क आप स्पॉट देख रहे हैं ये आपके पॉजिटिव आयंस हैं। इनकी जो अकरेंस है वो बॉटम ऑफ कैथोड की तरफ है क्योंकि ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस की सूरत में एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एवलांच मैकेनिज्म कहलाता है जिसमें बिलियंस ऑफ वोल्टेज अकरेंस होते हैं और ये इसमें हैवी ड्यूटी डिस्चार्ज अकरेंस आपको नजर आता है। और ये जिसने थ्योरी रिप्रेजेंट की थी वो आपका टाउनसेंड्स कहलाता है और इस थ्योरी के नाम के हिसाब से इसे टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी कहा जाता है। अच्छा, फर्दर ये जहां से इनिशिएट हुआ है हमारा टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी, ये आपका नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज के इसको भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो जो डिस्चार्ज आपकी अकरेंस हो रही है ये चार्ज ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बल्कि नॉन सस्टेनिंग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के नेचर की वजह से ये आपका डिस्पर्स हो रहा है, बिखर रहा है। तो इस एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी को टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी कहा जाता है। फर्दर मोर अब यहां से अगर हम इसे देखें तो सेल विद अ गैस प्रेशर ऑफ फ्यू टोर इज द टोर प्रेशर का एक यूनिट होता है, बार प्रेशर का यूनिट है, टोर प्रेशर का एक यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है और एचजी भी एक प्रेशर का यूनिट है। मेरे ख्याल में 12 यूनिट्स होते हैं प्रेशर के। न्यूटन न्यूटन मीटर भी होता है और बहुत सारे प्रेशर के यूनिट हैं, फोर्स के हिसाब से भी बहुत सारे यूनिट प्रेशर के हैं। तो टोर इंडस्ट्रियल एक बार का प्रेशर तो इंडस्ट्रियल यूनिट है ही, टोर का भी एक इंडस्ट्रियल प्रेशर का यूनिट होता है। तो टोर के हिसाब से फ्यू ऑफ टोर्स का यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट आपकी स्ट्राइक करती है कैथोड की तरफ। कैथोड इज अ नेगेटिव आयन और यहाँ से आपके आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू होते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ मीडियम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। अब कैथोड से प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन्स और जब यहाँ से फ्लो होना शुरू होंगे तो असल में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट का फ्लो होना है। अब वो आयंस यहाँ पर कलेक्ट होते हैं और जब वो कलेक्ट यहाँ पे होते हैं तो एनोड के ऊपर वो इम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो फिर यहाँ से करंट लिमिटिंग रेजिस्टर एक लगा हुआ है और यहाँ पे एमीटर के जरिए करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है और वो रिसीव हो जाएगा एडजस्टेबल ऑफ हाई वोल्टेज। इस तरीके से यहाँ पे फुलफिलमेंट होती है और वर्क फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ये पूरी थ्योरी का जो है वो एक रिफ्लेक्शन है। अभी एक वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जा रहा है जिसमें ये टोर के हिसाब से प्रेशर बताया जा रहा है कि जीरो ऑफ इनिशियल टोर के हिसाब से आपके इनिशियल वोल्टेज V1 था, करंट भी आपका इतना ही था। अब आपका वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया लेकिन करंट इतना स्लाइटली नहीं बढ़ रहा। एक ये टाइम इंटरवल ऑफ T1 के बाद जब T2 अगर हुआ है तो आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था लेकिन आपका करंट इतना अकरेंस नहीं बढ़ा है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ V2 के ऊपर आकर जब आपका करंट एकदम स्पाइक की तरफ गया है तो वहां इस लेवल पे आके जब ये चीज अचीव होती है V ऑफ S के ऊपर जाके तो इसे हम कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन लेवल होता है। तो नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज
इससे पहले का स्टेट होता है, लेकिन जब इससे क्रॉस कर जाता है और शूट कर जाता है तो ये सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज है ये, यानी ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कभी देखें वोल्टेज ज्यादा और हाई तो थे, लेकिन ये इस लेवल पे थे, यहाँ पे आके वोल्टेज एकदम बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन करंट इतना नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे आके भी आपके T2 के ऊपर आके, T2 इज अ टाइम इंटरवल एट थर्ड कैटेगरी, T0 is the initial time, T1 is the first time and T2 is the second category of time। लेकिन इसके बाद जो है वोल्टेज और करंट आपका नॉन सेल्फ सस्टेनिंग रहा है। शुरू में सेल्फ सस्टेनिंग है, नॉन सेल्फ सस्टेनिंग है, और फिर आपका सस्टेनिंग है। तो इसलिए इसे सेल्फ नॉन सेल्फ सस्टेनिंग कहा जाता है। लेकिन इस लेवल के बाद जब ब्रेक डाउन का रीजन उसे अकर हो जाता है तो इस लेवल को सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज कहा जाता है। तो ये पूरी अकरेंस जो है, ये थ्योरी जो आपको बताई जा रही है, ये आपकी टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन थ्योरी कही जाती है, जिसके अंदर रीजन जो डिस्कस हो रहा होता है वो नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज रीजन डिस्कस हो रहा होता है, और उसके बाद जो है वो आपका इसके बाद की थ्योरी डिस्कस होती है। प्राइमरी आयनाइजेशन जो कैटेगरी है स्टेज की, नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज। अब इसके अंदर इससे पहले हमने डिस्कस किया कि नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज और ये नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज है। अब इसके अंदर जो है वो आपका डिस्चार्ज अकरेंस हो रहा होता है, उसका वो मीडियम भी बढ़ रहा होता है, और ये मूवमेंट फिर कैथोड पे नजर आ रही होती है, और इस तरीके से ये आप एवलांच कंसिस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्लो पॉजिटिव आयंस के नतीजे में ये नजर आ रहा होता है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्कशन इसकी करेंगे, लेकिन ये इतनी सूदमंद नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसमें इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन हो रही है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ आयनाइजेशन डिस्कस हो रही है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ थ्योरी जो है वो हमारी टाउनसेंड क्राइटेरिया और स्पार्क ब्रेकडाउन है। अभी हमने जो थ्योरी डिस्कस की है वो टाउनसेंड थ्योरी डिस्कस कर ली है, और इसमें हमने ये डिस्कशन करी है किस तरीके से आपकी सेल्फ सस्टेनिंग से सस्टेनिंग आयनाइजेशन की तरफ वो चीज मूव हो रही होती है, और उसका लुब्बे लबाब क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। तो ये ग्राफ से काफी हद तक चीज रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, आज के सेशन को हम यहाँ तक एंड करते हैं। कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में है तो वो काइंडली पूछ लीजिए, बाकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। होपफुली सेशन आज का काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग रहा होगा, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सेशन को आज के यहाँ पर हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर आपने अटेंडेंस तो ले ली ना? अटेंडेंस ले लिया मैंने जी।